और धीरे धीरे मंदिर बनना शुरू किया और फिर लक्ष्मी भी आना शुरू हुई। तो बहुत मैंने एक ऑफरिंग की थी कुछ समय पहले कि पुणे में मंदिर बनेगा तो आप लोग भी आना। तो आज वो मंदिर बन चुका है और महाराज उस मंदिर को एकदम फेमस बनाना चाहते थे। तो इसलिए महाराज ने अपने जो प्रेसिडेंट है भारत के प्रणब मुखर्जी, इनको लाए खास उस मंदिर ओपनिंग के लिए और उनके हाथों से वो मंदिर को ओपनिंग किया। तो इतना वो फेमस हो गया कि पहले संडे से ही उस मंदिर में 10-12 हज़ार लोग आना शुरू कर दिए। तो ये है महाराज की कृपा और महाराज की शक्ति। एक छोटी सी बात है, एक व्यक्ति एक डोनर था, उसने कमिटमेंट की थी बड़ी अमाउंट की, लेकिन बाद में उसका मन बदल गया थोड़ा। फिर हम लोग प्रयास करते तो बोलता नहीं मैं वो हमको टाल देता था। फिर महाराज को बोले महाराज इसने कमिटमेंट किया है लेकिन वो ये दे नहीं रहा है, बड़ी अमाउंट थी। महाराज उसके घर गए, मिले, कुछ बातचीत नहीं है। जब महाराज निकले उसके घर से बाहर और उसको बोला अरे तुमने वचन दिया था वो बड़ी अमाउंट का। बोला नहीं मैं और कहीं खर्च करूँगा ऐसे वैसे। महाराज बोले ठीक है कोई बात नहीं। उसका हाथ लिया, हाथ पकड़ा महाराज ने और बोला ठीक है। पता नहीं हाथ पकड़ा समय महाराज ने क्या जादू किया और महाराज के गाड़ी में महाराज थे, पीछे मैं बैठा था, शुद्धदेव प्रभु बैठे थे, महाराज का असिस्टेंट था। गाड़ी उसके गेट से बाहर आई एक 100-200 मीटर। उसने फ़ोन किया महाराज को, महाराज मैं कल पैसे देने के लिए तैयार हूँ पूरे तो ऐसे बहुत से किस्से हैं। अब मैं समय नहीं है, बस मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं ऐसे इतने महान शुद्ध वैष्णव जो है गुरु परंपरा में, उनसे मैं दीक्षित हूँ, मुझे बहुत गर्व है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। और ये हमारे प्रभु जी है, मेरे बहुत मार्गदर्शक गुरु है, इन्होंने मुझे बचाया आध्यात्मिक जीवन में, मैं उनका भी ऋणी हूँ बहुत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अब हमारे बीच में हिज गेस्ट रुक्मणी कृष्ण प्रभु, जो कि हमारे इस्कॉन पंजाबी बाग मंदिर के अध्यक्ष हैं। नमः विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यम य प्रकाश्य व्यतीच प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। Respected Guru Maharaj, please accept my most humble obeisances onto your lotus feet. All glories to Srila Prabhupada. On the most auspicious occasion of your appearance day, I consider myself to be the most fortunate of having the opportunity to offer few words of glorification of your divine personality. Today is the most important day in the history of creation. Lord Krishna has sent you to this material world to reclaim countless conditioned souls, including me. You are the personification of Lord Krishna's mercy. Guru Maharaj, you are a true Acharya, showing by your personal example how to be a fully surrendered disciple. On the disappearance day of Srila Prabhupada in Vrindavan in year 2011 and 12, you have said, let us rededicate our lives for Srila Prabhupada's movement. You are living this statement moment to moment. You are showing by your personal example what dedication to Guru means. Srila Prabhupada desired to have about 12 temples in Delhi only. For a long time, everyone was wondering how will it be possible. But out of your love for Prabhupada and by your dedicated efforts, these temples are now manifesting one after another, and presently there are 10 centers in Delhi NCR and more may manifest in future. You are serving the mission tirelessly day and night. Despite your bad health, you are carrying the major load of the movement on your frail shoulders. Once after a very hectic day's service, you said to one of your disciples, it's not an easy task to manage an international society. Lord Kapila in 3rd canto of Srimad Bhagavatam explains, Titikshuva, that is a tolerance to be the first symptom of a self-realized sadhu. Guru Maharaj, you exhibit infinite tolerance. You tolerate your disciples' unsubmissive attitude as Lord Krishna tolerates the impudence of conditioned souls. You are a true Mahatma, big-hearted, accommodating disciples all kinds of mistakes and inspiring them to stick on the path of Krishna consciousness in all situations. By your personal example, you teach us the quality of gratitude. Anyone who renders even the tiniest of the service in the mission of Prabhupada is able to please you, and you remain always indebted to him. Guru Maharaj, you are compassion personified. Despite your frail health, you keep on traveling and fervently preaching the glories of Lord
throughout the globe, giving love and shelter to so many conditioned souls, starved of love from time immemorial and deeply entrenched in the blind well of material existence. In spite of your super tight hectic schedule, you give so much of your personal care and attention to your disciples. You are always deeply concerned about the spiritual welfare for all of your disciples. I have personally seen in recent past how much you have extended yourself in helping out the devotees going through the rough phase in their personal lives. On this most auspicious occasion, I beg forgiveness for all the offenses I have committed at your lotus feet. Guru Maharaj, please bless me so that I can chant the holy name attentively, sincerely endeavor to become the servant of the servant and inculcate the spirit of sacrifice in me. Trying to be your servant, Rukmini Krishna Das. धन्यवाद रुक्मणी प्रभु। तो ठीक 5 मिनट के बाद गाजियाबाद के लिए बस जाने को तैयार है। तो जो भक्त गाजियाबाद से आए हैं गाजियाबाद की बस पकड़े हैं और वृंदावन की बस छूटने ही वाली है। अगर कोई यहाँ पे है जो वृंदावन जाना चाहता है तभी भी कैस बस पकड़ सकता है। The bus will leave immediately for Vrindavan. Please do not stay back in case you need to leave for Vrindavan and you have come on the bus. Please leave immediately. और अब हमारे बीच में है सर्वलक्षण प्रभु फ्रॉम पुणे। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामिने प्रभुपादस्य साहित्य में प्रकाश वित्रिजय प्रचारम कृतवान साधु भगत पादाय नमः। हरे कृष्ण। 2 साल पहले मैं जब मंदिर में प्रसाद के लिए जा रहा था तो महाराज रास्ते में मिले और महाराज मुझे पूछे क्या आपने प्रसाद पाया? नहीं महाराज, अभी जा रहा हूँ। तो आप भी ऑफरिंग दे देना, मैं ब्रजेंद्र नंदन प्रभु को बोलता हूँ। तो और बहुत ज़्यादा डिवोटी थे तो हमने सोचा कि हम नहीं देंगे तो हम पीछे हट गए। तो इसके बाद महाराज दूसरे दिन हम महाराज को मिलने के लिए गए। महाराज हमको पूछ रहे आई एम वेरी सॉरी, आपको ऑफरिंग करने के लिए नहीं मिला। तो हम सोच रहे थे महाराज कितना सब ख्याल लेते हैं। तो रिसेंटली हमारा NVCC मंदिर ओपन हो रहा था पुणे में। तो महाराज पर्सनली हर एक चीज़ मैनेज कर रहे थे, जैसे कदम कृष्ण प्रभु और श्याम कृष्ण प्रभु ऑलरेडी बता चुके हैं। तो जब महाराज NVCC ओपनिंग के लिए आए थे तो वहाँ पर श्री गुरु चरण प्रभु बोले कि जब से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया निकलेंगे दिल्ली से तब से लेकर जाने तक एक भक्त को एक सेवा देना, वो कंटिन्यूसली नरसिंह आरती गाना चाहिए। और हर एक चीज़ महाराज पर्सनली केयर कर रहे थे, इतना तक कि कारपेट क्या होना चाहिए, कौन सा क्वालिटी का होना चाहिए और एकदम फ्रेश नया होना चाहिए और पूरा हर एक चीज़ मैनेज कर रहे थे। तो मेरा एक सेवा था, जब प्रेसिडेंट आने वाले थे तो प्रेसिडेंट को फ्लावर ऑफर करने के लिए सेवा था। महाराज मेरे पास आ गया और बोले कि महाराज का फ्लावर देने का सेवा आपका है? जी महाराज। तो कहाँ है तुम्हारा प्लेट? तो एक्चुअली एक सकीनाथ प्रभु है, वो नया एक प्लेट लाने वाले थे तो उनके पास था, मैं गया नहीं था। तो वो सकीनाथ प्रभु के पास है, वो कहाँ सकीनाथ प्रभु, उनको बुलाओ। तो प्लेट नया प्लेट वो सकीनाथ प्रभु को बुलाया, वो प्लेट लेके आए। कहाँ है फ्लावर, कहाँ है? तो फ्लावर फ्रिज में था। फ्लावर महाराज पर्सनली DT किचन में गए और फ्लावर को कैसा करना चाहिए वो पूरा महाराज पर्सनली बताए। और महाराज एकदम माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं। और महाराज हमारे मंदिर में एक प्रभु जी हैं, यहाँ पर बैठे हैं, जुगल किशोर प्रभु। तो जुगल किशोर प्रभु किचन में सेवा करते थे और महाराज एक दिन उनको बोले, जुगल किशोर प्रभु यू आर इंजीनियर, व्हाट यू आर डूइंग इनसाइड किचन, कम आउट, यू शुड प्रीच। तो महाराज ने उनको पर्सनल इंस्ट्रक्शन दिया और जुगल किशोर प्रभु ने उसको एज इट इज़ ले लिए। और जुगल किशोर प्रभु अभी NIT रौरकेला में प्रचार कर रहे हैं। और NIT रौरकेला में हमारा वॉइस है, मतलब एक यूथ सेंटर है, वहाँ पर 40 से ज़्यादा भक्त अंदर रहते हैं। ऑलरेडी दो बैच पास हो चुके हैं।
और महाराज ब्रह्मचारी से जब पुणे आते हैं तो एकदम पर्सनल केयर लेते हैं, हर ब्रह्मचारी महाराज का पर्सनल एसोसिएशन लेना चाहते हैं। महाराज इतना तक पूछते हैं कि आप लोग ब्रह्मचारी को क्या क्या प्रसाद खिलाते हैं, वो भी महाराज पूछते हैं। और मेरा एक पर्सनल एक चीज़ है, जब मैं मंदिर में पहला मेरा इनिशिएशन हो रहा था, तो इनिशिएशन के दिन मैं कुछ सेवा के बिजी था, उस दिन मैंने शेविंग नहीं किया था। महाराज जो इनिशिएशन सेरेमनी के बीच में मुझे पूछे, यू आर लिविंग इन टेम्पल, आप मंदिर में रहते हो, आप शेविंग क्यों नहीं किया? और राधेश्याम प्रभु को बुला के पूछे, राधेश्याम यू हैव नॉट टोल्ड हिम टू शेव हिज हेड। तो हमारा प्रोसीजर थोड़ा लंबा रहता है, तो हमने देखा कि ठीक है महाराज, अभी उस दिन मैंने शेविंग नहीं किया। दूसरे दिन महाराज फिर से पूछे कि आप शेविंग नहीं किया? तो फिर इसके बाद एक 6 महीना हो गया, तब भी मैंने शेविंग नहीं किया था, थोड़ा दिन लग रहा था। तो फिर से मैं और जुगल किशोर और कुछ वक्त बॉम्बे चले गए थे महाराज को मिलने के लिए, और महाराज सवेरे भागवतम क्लास दिए। भागवतम क्लास के बाद हम लोग महाराज को मंदिर महाराज के रूम में पर्सनल मिलने के लिए गए। तो हम सोच रहे थे कि अभी मैंने शेविंग अभी भी नहीं किया है तो महाराज मुझे डांटेंगे, इसलिए मैं बोला जुगल किशोर वो मैं नहीं आना चाहता हूँ। नहीं, महाराज ने आपको देखा है, भागवतम क्लास में महाराज ने आपको देखा है, कुछ नहीं बोला, कुछ बोलेंगे नहीं। तो हम लोग 25-30 वक्त थे, आगे सब लोग को भेज दिया, मैंने पीछे चुप रहा था। तो महाराज वो एकदम सामने से एकदम पीछे देखे, आई टोल्ड यू टू शेव योर हेड आप शेविंग नहीं किया तो मेरा सर का वजन बहुत भारी हो रहा था, तो इमीडिएटली मैं जाके शेविंग किया। ये सब महाराज की मर्सी है, और मैं महाराज से कृपा की याचना करता हूँ, महाराज ऐसे हमारे ख्याल रखें, और महाराज का कृपा से हम शिल प्रभुपाद का शेल्टर मरे। शिल प्रभुपाद की जय, भगवत पाद महाराज की जय। धन्यवाद प्रभु जी। और अब आएंगी अनुरुद्ध प्रिया माता जी, और उसके बाद भागवत प्रिया माता जी। अनुरुद्ध प्रिया देवीदासी जो गुड़गांव से हैं। बोले हरे कृष्णा, दोनों हाथ पर उठा करके बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। व्यास पूजा महामहोत्सव की कृष्णा। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यं ये प्रकाश्य वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पदाय ते नमः। Most Reverend Srila Gurudev, please accept our humble obeisances unto the dust of thy lotus feet. All glories to Srila Prabhupada and the Guru Parampara. It is our great fortune for enabling us to glorify thee on this special day of your appearance. We are indeed blessed to have been accepted by thee, and the love and concern thy divine self has always showered on us. In fact, all our family members. You have been so compassionate in giving the attention and priority to us, by which I mean the entire Gurgaon congregation, your complete and exceptional love, which makes us feel so very special, Gurudev. Thy mercy is felt by us, yet we are unable to detach ourselves from the entangled web of this material conditioning. Kindly accept our prayers and bestow thy kindest glance of Krishna Bhakti onto our contaminated mind and heart. The more we get a chance to have thy darshan, even while at home, the greater we are indebted to thee and want to work even harder to achieve the level expected from us. Yet our polluted senses withdraw us from the services. Gurudev, each time we see thyself, observe you, we get the strength to fight with ourselves. Padam padam yad vipadam na tesham.
Your presence, which is always there, helps us to sustain all the challenges, subtle as well as gross, which we face continuously at every step. Your kind enthusiasm to serve the lordships and all the devotees is so strong, which very often makes us wonder-struck. We wonder how yourself can remember our names and every individual devotee's issues even after months. We thus humbly beg and pray to Shri Radha Parthasarathi to give thee a very long and healthy lifespan on this planet so that we Adhams keep getting thy mercy and guidance. With warmest regards, your eternal servants, Achyut Haridas and Aniruddha Priya. अच्युत हरि प्रभु और अनुरुद्ध प्रिया माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड़गांव में कभी प्रचार कर रहे हैं और अब डॉक्टर भगवत प्रिया देवी दास जी। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामने प्रभुपाद साहित्यम ये प्रकाश प्रचारम कृतवान साधु भगवत बताए ते नमः। Respected Gurudev, please accept my humble obeisances at your divine lotus feet. All glories to you, Guru Maharaj, for saving so many conditioned souls from the miseries of the material world and for sowing the seed of love for Radha Krishna. Gurudev, you are an active, ever-energetic person, deep in thought and meditation, and a true Vaishnava from top to toe. Gurudev, a moment of your association can change a materialistic into a devotee. You work very hard just to enlighten the fallen souls about the transcendental knowledge. Gurudev, you follow your Guru Maharaj, Srila Prabhupada, very closely. You are a perfect example of a perfect devotee and a perfect spiritual master. In spite of your busy preaching schedule of going around the world, you have sufficient time for your disciples, hear their problems and difficulties. You are very kind, tolerant and merciful to them. On this auspicious day, we are begging for your mercy so that we can serve you better life after life. We pray to Sri Radha Parthasarathi for your good health and strength so that you may stay on this planet for hundreds of years and many bewildered souls get the guidance to the lotus feet of Lord Krishna. All glories to Srila Bhagavad Pad, all glories to Srila Prabhupada. Your sincere servant, Bhagavad Priya Devi Dasi. Hare Krishna. बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हमारे बीच में डॉक्टर कृष्ण प्रिया प्रभु। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्नमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यमिह प्रकाशे वितीरे च प्रचारं कृतवान् साधु भागवतपादाय ते नमः। आज जो है बहुत ही शुभ दिन है। आज हमारे गुरु महाराज 69 इयर्स बिफोर, आज से 69 साल पहले यहाँ इस धराधाम पर प्रकट हुए। तो जब हम गुरु महाराज को देखते हैं तो और फिर अपने आप को देखते हैं तो बहुत ही लज्जा सी महसूस होती है। महाराज कहाँ और हम कहाँ। महाराज तो वैकुंठ लोक के व्यक्ति हैं और हम तो इस धराधाम में भी पापी व्यक्ति हैं। लेकिन ये उनकी इतनी करुणा है कि हम जैसे लोगों को भी उन्होंने साथ में रखा हुआ है। बहुत ही करुणा है महाराज की। और महाराज के जो गुण हैं उनका तो जितना भी बखान किया जाए वो कम है, वो उतने बखान कर नहीं सकते। महाराज का जो संग मिलता है वो ज़्यादा संग मिलता है हमें
जब गुरु महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, तो महाराज हम देखते हैं कि जब स्वास्थ्य ठीक नहीं है तभी भी महाराज जो हैं एक सेकंड भी भगवान की सेवा के बिना वो रहते नहीं हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि महाराज जो हैं भगवान की सेवा के बिना रह ही नहीं सकते। तो बहुत ही महाराज ऊंचे धरातल पर हैं। जैसे हम सुन रहे थे हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज उनके बारे में बोल रहे थे, तो बिल्कुल सच बात है। हमने भी अपने जीवन में देखा है कि महाराज ने कभी भी अपना जो ह्यूमिलिटी है और जो नम्रता है वो पराकाष्ठा की है। वो वही व्यक्ति ऐसी नम्रता बता सकता है जो भगवान के बहुत नज़दीक है। तो हम तो उनको ऐसे देख रहे हैं, लेकिन उनका भगवान के साथ क्या संबंध है ये हम नहीं देखते। इसीलिए महाराज जो है यहाँ पे इस संसार में बिल्कुल बैरागी हैं। इस संसार में रहते हुए भी वो इस संसार के नहीं हैं। इस संसार में हमें लगता है कि इसी संसार में हमारी तरह रह रहे हैं, हमारी तरह चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेकिन वो इस संसार के नहीं हैं। वो दूसरे ही संसार से आए हैं और उसी संसार में ही रह रहे हैं वो। तो महाराज के इन गुणों को हम महसूस कर सकते हैं जब हम महाराज की सेवा करेंगे, क्योंकि सेवा के बिना जो है महाराज के गुणों को हम देख नहीं पाएंगे, जो छुपाए रखेंगे। गुरु महाराज जो हैं अपने गुणों को छुपाए रखते हैं। जैसे भगवान भी कहते हैं ना हम प्रकाशस्य सर्वस्य, तो भगवान जैसे सबको अपने गुण दिखाते नहीं हैं, छुपा के रखते हैं, इसी तरह से भी ऐसे जो व्यक्ति हैं जो भगवान के धाम से आए हैं वो अपने गुणों को प्रकाशित नहीं करते आम व्यक्तियों के लिए, ईर्ष्यालु व्यक्तियों के पास। तो अगर हम उनको जानना चाहते हैं, उनके गुणों को देखना चाहते हैं, तो उनकी सेवा करनी पड़ेगी। यही एक तरीका है ऐसे गुरु को जानने का। तो बातें तो बहुत सारी हैं कहने की, लेकिन लोग भी बहुत हैं कहने के लिए। तो मैंने वैसे अपनी व्यास पूजा लिखी भी थी व्यास पूजा बुक में, लेकिन शायद मैं लेट हो गया भेजने में, तो उसमें वो छपी ही नहीं। तो मैं आज के दिन गुरु महाराज से, क्योंकि आज का बहुत महत्वपूर्ण पावन दिन है, और आज के दिन जो है वैष्णव लोग बहुत दयालु होते हैं। तो मैं उसी दया की कामना करता हूँ, गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पे आज के दिन कृपा करें, क्योंकि उनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है। उनकी कृपा के बिना तो हम लोग एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगर उनके चरणों में मैं रो कर प्रार्थना करता हूँ कि आज के दिन वो कृपा करें और मैं भी जो है इस भव सागर से बाहर निकल सकूँ। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। और गुड़गांव से हिज गेस्ट दासरथी प्रभु और कृष्णांगी माता जी दिल्ली से और उर्मिला माता जी दिल्ली से वो मंच पे आ जाएं। हिज गेस्ट दासरथी प्रभु। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपालकृष्ण गोस्वामीति नामिने। प्रभुपदस्य साहित्यं य प्रकाश वितर्यच्च प्रचारं कृतवान् साधो भगवत्पादाय ते नमः। Thanks etons for giving me an opportunity for the glorification of my spiritual master. Though I am not at all eligible for the glorification of my spiritual master, who is so heavy, but for the purification of myself, I have composed a prayer for my spiritual master, which I want to sing for the pleasure of my spiritual master.
भगवत पदाय तुम्हें विष्णु पदाय प्रभु पद सेनापति विश्व वंदनीय दिव्य दर्शने तब माया अंधकार जगमग सारा लोक जगत संसार असीम करुणा बहे तब मुख पद्मे ब्रह्म पाप नाश हुए चरण दर्शने प्रभु पद दिव्य ग्रंथ करिला प्रकाश मायावादी महिमा की हुआ सर्वनाश हरे कृष्ण महामंत्र अति मूल्यवान वितरिला पतितंको कौड़ी समान राधा कृष्ण नित्य लीला हृदय तुम्हारा भक्त रूपी देवगण तप परिचर उद्धारिल बध जीव भौतिक संसार पराजित अज्ञान माया अंधकार विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय श्रील गुरुदेव हरिनाम वितरिल उद्धारिल निस्सहाय जीव शैत्य नाही दया नाही कल्मष स्वभाव असहाय कष्ट यहाँ निस्सहाय जीव दया कर गुरुदेव दयार सागर पतित पावन हेतु तब अवतार कृष्ण प्रेम तुम धन तुम्हें धनवान कष्टमय माजाल ए भव बंधन दासरथी दास कहे नाही मोर ज्ञान तब श्री चरणे सदा रहो ए जीवन। थैंक यू। हरे कृष्ण। अब कृष्णांगी माता जी बहुत भाव से कविता सुनाएंगी। इनकी ऑफरिंग बहुत भावपूर्ण होती है। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामनि प्रभुपादस्य साहित्यम य प्रकाश वितीरच प्रचारम कृतवान साधो भगवत्पादाय ते नमः। मेरे परम पूजनीय श्री शील भगवत्पाद महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस परिविजयाचार्य अष्टोत्तर भक्ति रसामत सिंधु में सतत निमग्न मेरे गुरुदेव, आज शुभ एकादशी के दिन आपके आविर्भाव तिथि का शुभ दिवस है। कृपया अपने दिव्य चरण कमलों में गंगादास व कृष्णांगी देवी दासी का विनम्र साष्टांग प्रणाम स्वीकार करें। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक श्री शील भगवत्पाद पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। गुरुदेव, आपका जीवन व्यवहार वाणी सब कुछ अपने प्रभु की सेवा में नियोजित रहता है। वास्तव में ऐसे संतों की अपनी पृथक सत्ता होती ही नहीं। भगवान ही संत के माध्यम से सब कार्य करते हैं। आप इसी कोटि के संत हैं जो जीवन के परम लक्ष्य को समझ पाए हैं। आप दया के सागर हैं, अपने भक्तों पर दया करने वाले करुणा के सागर हैं। मैं आपके श्री चरणों की बलिहारी जाती हूँ। आपने मुझे अपनी सेविका स्वीकार किया है। कृपया आप मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं रात दिन आपके श्री चरणों में लगन लगाए रहूं। एक पल भी मेरा मन आपके श्री चरणों से अलग न हो।
आपके श्री चरणों की पावन धूलि से अनेक पतित पापी पवित्र हुए हैं। यदि किसी भक्त में समर्था है तो वो स्वयं मिलने के लिए पहुंच जाता है। यदि चलने में असमर्थ है तो धैर्य रखकर उसे प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसीलिए मैं भी अपनी असमर्थता को देखते हुए आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझ में शक्ति नहीं है, मैं दीन हूँ और दिन रात आपकी कृपा का मार्ग देख रही हूँ। मैं यह भी तो नहीं जानती कि आपकी कृपा मुझ पर कब होगी। जब भी आप अपने दयालु स्वभाव से द्रवित होकर मुझ पर कृपा कर देंगे उस समय मेरा कल्याण हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि आपकी कृपा मुझे केवल आपके श्री चरणों के द्वारा प्राप्त हो। आप पूछ सकते हैं कि केवल चरणों से ही क्यों, हाथ और आंख से क्यों नहीं? तो मैं बता सकती हूँ कि हे गुरुदेव, आंख से कृपा करने के लिए जब आप दृष्टि उठाकर मेरी ओर देखने लगोगे तो आपकी दृष्टि मेरे अपराधों की ओर चली जाएगी और तब आप यह सोचकर कि यह तो कृपा के योग्य है ही नहीं, आप अपने नेत्र मूंद लेंगे। और यदि मैं हाथ से कृपा करने की प्रार्थना करूं तो आपके हाथ में दंड है। मुझे यही डर लगता है कि कृपा के लिए बढ़ते हाथ कहीं न्याय का आश्रय लेकर मुझे दंड न देने लग जाएं। इसलिए गुरुदेव, न तो आप हाथ से कृपा करें और न ही नेत्रों से, आप तो बस अपने श्री चरणों से कृपा करें जिनसे गंगा निकली है। गंगा की कृपा तो सब पर समान रूप से होती है। आज तक उसने पापी पुण्यात्मा जाति और ऊंच नीच का कभी कोई भेद नहीं किया। यह है आपके श्री चरणों की विशेषता जो कभी समाप्त नहीं होती। मेरा कल्याण तो केवल आपकी कृपा से ही होगा। यद्यपि मैं अपने जीवन में हर पल आपकी कृपा को अनुभव करती हूँ। किसी भक्त ने मुझसे पूछ लिया कि कभी आपकी परीक्षा हुई, तो मैंने कहा कि कई बार हुई। फिर आप कब पास हुई और कब फेल हुई? मैं तो कभी फेल नहीं हुई। ये तो आश्चर्य की बात है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? मैं तो अपनी योग्यता से तो कभी पास ही नहीं हुई, जीवन भर कृपांक से ही पास हुई। जैसा कि आप सब जानते हैं कि परीक्षा में जब कोई छात्र बहुत थोड़े अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा हो तो उसके वे थोड़े अंक बढ़ाकर उत्तीर्ण कर दिया जाता है। मैं भी जीवन भर अपने गुरुदेव की कृपा के द्वारा ही सफल होती हूँ। ऐसी कृपा करो गुरुदेव मेरे, हर जन्म में रहूं शरण में तेरी। भूल कर नाता जग से न जोड़ूं, नाता पावन चरणों से ही जोड़ूं। चाहे जितने जन्म मुझको देना, हर जन्म में मौका सेवा का देना। कोई इच्छा जग की न सताए, सेवा निष्काम तुम्हारी ही भावे। विनती सुन लो गुरुदेव प्यारे, साधनहीन दीन हूँ मैं। हर जन्म में रहूं शिष्य तुम्हारी, अब ले लो शरण में अपनी। ऐसी कृपा करो गुरुदेव मेरे, हर जन्म में रहूं शरण में तेरी। हम न जाने कितने जन्मों से इस जन्म मृत्यु के भंवर में फंसे हुए हैं और निकल ही नहीं पाते। क्योंकि हम निकलना ही नहीं चाहते। हम हर जन्म में अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगे हुए हैं। जीव की जब तक किसी में निष्ठा नहीं होती तब तक उसके हृदय में स्थिरता, कर्तव्य परायणता तथा सहनशीलता नहीं आती। निष्ठा संबंध से आती है। सबसे अधिक संबंधी माता पिता हैं क्योंकि वे शरीर को देने वाले हैं। इनसे भी अधिक संबंध से गुरुदेव आपका है। आप ही अज्ञान को मेटकर ज्ञान ज्योति प्रदान करते हैं। गुरुदेव, आपका स्थान तो ईश्वर से भी बड़ा है। जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार दूर हो जाता है, वैसे आपके वचन शिष्य के अंधकार को दूर कर लेते हैं। आपने तो सदा अपने धर्म का पालन किया है अपने शिष्यों के प्रति, फिर चाहे शिष्य आपके आदेश का पालन करे या नहीं। आपके द्वारा दिए गए ज्ञान के महासागर में शिष्य क्या ढूंढता है, मोती या कंकड़, यह शिष्य पर निर्भर करता है। आप निरंतर अपने गुरुदेव श्री शील प्रभुपाद की संस्था का प्रचार करते रहते हैं और प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ने और वितरित करने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। साथ ही आप देश विदेश में चैतन्य महाप्रभु के संदेश को देते रहते हैं। आज दिनांक 29/6
2013 को आपको बुखार है, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बगैर विदेश जा रहे हैं। अर्थात आप स्वयं दुख सहकर दूसरों को सुख प्रदान करते हैं, जिसके कारण आप सदैव वंदनीय हैं। ऐसो को उधार जग माही, बिन सेवा जो दिरवे दीन पर, गुरुदेव सरस को नाही। आपके हृदय की सरलता व कोमलता आपके संतत्व का प्रमाण है। आप अमृत बांटने के उद्देश्य से इस धराधाम पर पधारे हैं। अपनी बात को समाप्त करते हुए श्री शील भगवत पाद गुरुदेव से मैं क्षमा प्रार्थना करते हुए अपने गुरुदेव के श्री चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम करती हूँ तथा अपने भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपका स्वास्थ्य सदैव ठीक रहे तथा आप अनेकानेक भक्तों के जीवन को प्रकाश और आह्लाद से युक्त करते रहें। आपके दासानुदास गंगा व कृष्णांगी देवी दासी। श्री शील भगवत पाद महाराज की जय। धन्यवाद माता जी। और हमारे बीच में हमारे बीच में प्रोफेसर पीपी शर्मा जी, जो कि DTU दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हैं, हमारे बीच में पधारे हैं। हम उनका हृदय स्वागत करते हैं। और महाराज जब विदेश गए थे अमेरिका में, तो इनके जो सुपुत्र वहाँ रहते हैं उनके घर भी गए थे तो वो अपना विचार व्यक्त करेंगे। और प्रभुपाद जी से मिल भी चुके हैं, ये कितने सौभाग्य की बात। हरे कृष्णा। I stand here before you, ladies and gentlemen, to pay my highest reverence and respect to Maharaj Ji, who has always blessed me and blessed my entire family, including my grandchildren, for last very many years. महाराज जी बहुत बड़ी पवित्र आत्मा है, मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और हमारी संस्कृति में जैसा कि आप जानते हैं कि गुरु का स्थान सर्वोच्च रखा गया है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, ऐसी हमारी संस्कृति की मान्यता है। महाराज जी तो बहुत ही सरल, बहुत ही अपने भक्तों के ऊपर पूरी कृपा करने वाले हैं। और यहाँ उपस्थित मेरे सभी हरे कृष्ण मिशन के भक्तों, इस बात को अच्छी तरह से समझ लो कि अगर गुरु की कृपा थोड़ी सी भी हमारे ऊपर पड़ जाए तो फिर तो चमत्कार होता है। ये कहा गया है कि गुरु की कृपा, उनकी दृष्टि जैसे ही अपने भक्त पर पड़ती है तो उसे विजय प्राप्त होती है, सोई विजयी। और विजयशील होने के साथ साथ उसमें विनम्रता और विनय का गुण स्वतः ही आ जाता है, सोई विजयी विनयी। और जो तीसरी बात है कि गुण सागर, वो गुणों का सागर हो जाता है, केवल ऑर्डिनरी गुण नहीं, वो सभी गुण जिससे कि एक अच्छे इंसान, अच्छे मानव, अच्छे भक्त, अच्छे ज्ञानी और अच्छे सत्कर्मी की कल्पना होती है, उन सभी गुणों का सागर वो भक्त गुरु की कृपा प्राप्त होने से हो जाता है। और एक बार आप विजयी हों, विनयी हो, गुणों के सागर हो, तो फिर पूछना क्या है, तासु सुजस त्रिलोक उजागर, फिर आपका यश सुयश बन जाता है और उसको फिर पब्लिसिटी करने की आवश्यकता नहीं होती। तासु सुजस त्रिलोक उजागर, वो यश तीनों लोकों में अपने आप उजागर होता है, उसी तरीके से जैसे सूर्य की रोशनी अपने आप उजागर होती है। महाराज जी प्रभुपाद के उन अनन्य शिष्यों में से एक हैं जिन पर प्रभुपाद की पूरी कृपा निरंतर बरसी है। और हम लोग अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम महाराज जी के संपर्क में आए और उनकी कृपा के पात्र बन सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि महाराज जी न केवल 100 वर्ष की आयु, बल्कि अगर विज्ञान के चमत्कार हो जाएं तो महाराज जी तो हमेशा ही इस पृथ्वी पर रहकर अपने भक्तों पर निरंतर कृपा बरसाते रहें और हम सबके ऊपर उनकी कृपा दृष्टि बने, ऐसी प्रार्थना ईश्वर से मैं करता हूँ। Thank you so much, ladies and gentlemen. I consider myself highly privileged and
feel really this as a rare honor to be here on such an auspicious occasion when we are celebrating Vyas Puja here for the Guru Maharaj Ji. My prayers to the lotus feet of Guru Maharaj Ji as well as to the Prabhupada. Hare Krishna. शर्मा जी का महाराज जी से इतना लगाव है कि जैसे ही पता चला वे तुरंत एयरपोर्ट से सीधा यहाँ पे आ गए। इससे पता कितना प्रेम है उनके हृदय में। और इसमें 2 बसें गेट नंबर 1 और 2 बसें गेट नंबर 4 से जाने के लिए तैयार हैं। ये बसें जाएंगी छतरपुर। तो छतरपुर से जो भक्त लोग आए हैं कृपा करके वे इस बस में जाएं। गेट नंबर 1 और गेट नंबर 4 ये चारों बसें जो हैं तैयार हैं। 2 बसें गेट नंबर 1 पे हैं और 2 बसें गेट नंबर 4 पे। तो हमारे बीच में हिज गेस्ट मसुंदर प्रभु। मसुंदर प्रभु बड़ा डायनेमिक बुक डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अब आप इनसे सुने किस तरह से बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पुस्तक वितरण में मास्टर हैं। हरे कृष्णा ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो यहाँ पर हम पुस्तक वितरण की चर्चा नहीं करेंगे। गुरुदेव जी का आविर्भाव दिवस है तो ये एक छोटी सी कविता मैंने लिखी है। और इस कविता में क्योंकि समय बहुत तीव्रता से व्यतीत हो रहा है तो समय से ही प्रार्थना करी गई है हमने। तो ये कविता इस प्रकार है। महाप्रभु की करुणा प्रकट हुई आज धरती पर। महाप्रभु की करुणा प्रकट हुई आज धरती पर। इनके चरणों में शीश झुकाने दो। तो महाप्रभु की करुणा यानी गुरुदेव। महाप्रभु की करुणा प्रकट हुई आज धरती पर। इनके चरणों में शीश झुकाने दो। धूप दीप सुगंधित फूलों से पृथ्वी को दुल्हन सी सजाने दो। शहनाई ढोल मृदंग नगाड़े आज चहुं दिशा में बजाने दो। ठहर जा समय आज हमें ये आविर्भाव मनाने दो। कृष्ण करुणामयी हैं। कृष्ण करुणामयी हैं परंतु गुरुदेव को करुणामूर्ति कहते हैं। कृष्ण स्वतंत्रता देते हैं पाप पुण्य की। गुरुदेव पापों को हर लेते हैं। ऐसे गुरुदेव की कीर्ति को समस्त भक्तों को गाने दो। ठहर जा समय आज हमें ये आविर्भाव मनाने दो। जैसे कृष्ण की सेवा के लिए यशोदा ने चिंता को खरीद लिया। जैसे कृष्ण की सेवा के लिए यशोदा ने चिंता को खरीद लिया वैसे भगवतपाद ने प्रभुपाद सेवा के लिए समस्त जिम्मेदारियों को वहन किया। ऐसे गुरुदेव के चरणों में हमारे मस्तकों को झुक जाने दो। ठहर जा समय आज हमें यह आविर्भाव मनाने दो। कृष्ण भक्ति से कोई सिद्ध हो, इस शास्त्रों का कथन है। कृष्ण भक्ति से कोई सिद्ध हो इसमें संदेह हो सकता है। कृष्ण भक्ति से कोई सिद्ध हो इसमें संदेह हो सकता है। गुरु कृपा करे कोई सिद्ध ना हो ये शास्त्रों में नहीं मिलता है। ऐसे गुरुदेव के यशों को त्रिभुवन में फैलाने दो। ठहर जा समय आज हमें यह आविर्भाव मनाने दो। कृष्ण हमारे नेत्रों के समक्ष आए नहीं। कृष्ण हमारे नेत्रों के समक्ष आए नहीं। उनके चरणों की सेवा हमने पाई नहीं। गुरुदेव की सेवा कर महसूस हुआ हमने उस रस की कमी गवाई नहीं। ऐसे अमृत प्रवाह रस में मधु सुंदर को डूब जाने दो। ठहर जा समय आज हमें यह आविर्भाव मनाने दो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में उर्मिला माता जी और इसके बाद केशव मुरारी प्रभु जो हमारे इस्कॉन रोनी के टेम्पल प्रेसिडेंट है वो तैयार रहेंगे। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज के इस पवित्र पावन दिवस पर
मैं गुरु महाराज के कुछ गुणों का वर्णन करना चाहती हूँ। मुझे महाराज के किचन में एक सेवा मिली हुई है, तो कभी कभी ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जो भुलाए नहीं जाते और कुछ रेयर होते हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो एक बार मैं महाराज के लिए प्रसाद बना रही थी, तो नमक की जगह पर वहाँ पर बूरा चीनी रखी हुई थी और मैं नमक समझ रही हूँ और वो बूरा चीनी मैं डाल रही हूँ और प्रसाद बना रही हूँ। तो थोड़ी देर में मुझे चीनी की ज़रूरत पड़ी, तो मैंने जो माता जी मेरे साथ बना रही थी उनसे मैंने कहा कि मुझे चीनी चाहिए। तो बोली ये ले लो, जो जिसको मैं नमक समझ रही थी। मैंने बोला ये तो नमक है। बोलते नहीं यही बूरा चीनी है। मैंने बोला अरे मैं तो सारे प्रसाद में डाल दिया। और आज क्या होगा जब गुरु महाराज प्रसाद पाएंगे तो क्या कहेंगे। मैं इतना डर रही थी। और जब आप मानेंगे जब महाराज प्रसाद पा रहे हैं, उन्होंने एक बार भी कुछ नहीं कहा और बड़े मज़े से प्रसाद पा रहे हैं। तो मैंने महाराज से पूछा कि गुरु महाराज आई एम वेरी सॉरी, आज प्रसाद अच्छा नहीं बना है और आज मुझसे गलती हो गई है। तो महाराज बोलते हैं नो इट्स ओके, और बहुत आराम से खा रहे हैं। तब मुझे लगा कि सच में सच्चे साधु हैं, उनको कुछ वो प्रसाद को ऑनर कर रहे हैं। उन्होंने ये भी नहीं उसमें देखा कि नमक है या चीनी है, बिल्कुल बड़े आराम से खा रहे हैं। हालांकि मैंने थोड़ा सा बाद में ऐड कर लिया था, लेकिन उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, कुछ भी नहीं कहा और बड़े आराम से खाते गए। और जब मैंने घर में जाकर वो प्रसाद ग्रहण किया तो मुझे लगा आज के प्रसाद में वो बात नहीं है जो होनी चाहिए थी। लेकिन मैं मतलब मन ही मन गुरु महाराज की मतलब टॉलरेंस की और मतलब ये देख रही थी क्या क्वालिटी है उनके अंदर कि उन्होंने एक बार भी प्रसाद में कोई गलती नहीं निकाली। और मैं वैष्णव एटिकेट्स में एक बार पढ़ रही थी, तो उसमें यही लिखा हुआ था कि हमें प्रसाद में प्रसाद जो भगवान का प्रसाद है वो कृपा है और उसे ऑनर करना चाहिए, उसमें कोई भी गलती नहीं निकालनी चाहिए। तो मैंने साक्षात गुरु महाराज को देखा कि कैसे वो ऑनर करते हैं प्रसाद को। उन्होंने कुछ भी कंप्लेंट नहीं की और बहुत आराम से खाते गए। तो मुझे बहुत अंदर से बहुत ग्लानि हुई कि और मैं अब बहुत ही केयरफुल थी। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं बनाती थी मैं बोले आर यू श्योर ये नमक है या चीनी है। बोलते हाँ। मैंने कहा डबली श्योर करके मैं कोशिश करती हूँ कि कोई गलती ना हो मुझसे, क्योंकि गुरु महाराज तो कभी कंप्लेंट नहीं करेंगे, लेकिन हमें अपनी गलतियों को देखना है और सुधारना उसको। और ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि प्रीचिंग कर रही थी मैं, तो करते कुछ ऐसी बात हो गई कि किसी माता जी से मैं थोड़ा नाराज़ हो गई थी। तो मैंने गुरु महाराज से कहा गुरु महाराज मैं इनको अपनी क्लास में नहीं लूँगी, आई एम वेरी अपसेट अबाउट इट। तो महाराज जी बोलते हैं देन यू आर नॉट फिट टू टेक क्लासेस फॉर द लेडीज़। और वो मुझे ऐसा लगा जैसे गुरु महाराज ने मेरी सर्जरी कर दी उस समय। वो सेंटेंस मुझे इतना अच्छा लगा और मुझे गुस्सा नहीं आया महाराज पे, मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने बहुत क्लियर कट बोला। एंड महाराज सेड कि आई वांट टू रेक्टिफाई, डोंट डिस्कार्ड द डिवोटीज, रेक्टिफाई देम एंड एक्सेप्ट देम। ये मैंने गुरु महाराज से अभी रिसेंटली बहुत क्लोजली जब ये इंसिडेंट हुआ तो मैंने सीखा कि किसी को डिस्कार्ड नहीं करना है। सभी भक्त भगवान को बहुत प्रिय हैं और उनको सिर्फ रेक्टिफाई करना है। और मुझे लगा कि रियली आई एम नॉट फिट टू टेक क्लासेस। अगर मैं ऐसे बिहेव करूंगी तो बाकी लोग कैसे करेंगे। तो गुरु महाराज में ऐसे गुण हैं जो वो सिखाते हैं, उनके साथ जब हम रहते हैं तो हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है प्रचार में भी। और उनके इतने गुण हैं, जितना हम उनकी सेवा करते हैं उतना उनसे प्रेम और ज़्यादा बढ़ जाता है। हालांकि उन्होंने मुझे डांटा, लेकिन मुझे उससे उनके प्रति मेरा प्रेम, मेरा जो ऑनर था उनके लिए, जो श्रद्धा थी मेरी और सम्मान और भी कई गुना बढ़ गया। तो मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं ऐसे गुरु की शिष्य हूँ कि जिनमें इतने गुण हैं। और उन गुणों में से अगर एक भी बूंद अगर हमें मिल जाए तो हम शायद इस भवसागर को पार कर जाएंगे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिला माता जी। अब केशव मुरारी प्रभु जो कि हमारे इस्कॉन रोहनी के टेम्पल प्रेसिडेंट हैं, बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। व्यास पूजा महामहोत्सव की। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की।
गुरु महाराज का हम लोगों को जिस प्रकार अभी तक सानिध्य हुआ है, इस मोमेंट्स को देखते हुए सोचते हुए मुझे यही लगता है कि आज जो हम लोग महाराज का संग ले रहे हैं, महाराज को देख पा रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले पा रहे हैं, आने वाली जनरेशन्स ठीक उसी प्रकार दिल में एक चाह रखती होंगी कि हाँ काश उस समय हम भी होते, जैसे कि आज हम लोग शिला प्रभुपाद जी के विषय में सोचते हैं। जब उनको हम लोग उनकी मॉर्निंग वॉक्स में देखते हैं या कहीं पर उनकी बुक्स को पढ़ते हैं, तो हम लोगों को लगता है कि हम लोगों ने शायद प्रभुपाद का संग नहीं कर पाए, उस प्रकार उनको देख नहीं पाए, उनके हाथ से प्रसाद नहीं ले पाए। लेकिन फिर भी जो गुण प्रभुपाद जी के अंदर थे हम देख पाते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी की ही छवि हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज में जो कि हमको डायरेक्ट संग से प्राप्त होती है। और हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हम लोग गुरु महाराज को देख पा रहे हैं, उनका संग ले पा रहे हैं, और इसलिए हम बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट हैं। इसके अलावा गुरु महाराज के अंदर इतने गुण हैं जिसका व्याख्यान सुबह से भक्त लोग कर रहे हैं, इतनी रियलाइजेशंस लोगों के पास हैं जो लोगों ने आज हमसे शेयर करी, और कुछ न कुछ भक्तों के ऐसे अनुभव भी रहे हैं जो कि उनके जीवन में घटित हुआ और वो महाराज की वजह से। कई बारी हमको जब गुरु महाराज पंजाबी बाग में आते हैं तो सौभाग्य प्राप्त होता है महाराज के साथ वॉक करने का। अभी परसों के दिन भी, जिस दिन प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस था, हम लोग रोहिणी में कार्यक्रम कर रहे थे, बट बाद में पता चला कि गुरु महाराज पंजाबी बाग में आ रहे हैं, तो दिल में एक थी कसक कि काश हम भी वहाँ होते और महाराज का संग कर पाते। किसी तरह कार्यक्रम समाप्त करके जब हम मंदिर पहुँचे तो महाराज वहीं थे और महाराज ने कहा मैं भी वॉक पे जाऊँगा, चलेंगे? तो हम चल पड़े साथ में। तो कृपा प्राप्त हुई, 1-1.5 घंटा महाराज का संग हुआ, और दिन के टाइम भी महाराज ने बताया कि किस तरह वो लगभग 3-4 दिन से सोए नहीं हैं। अमेरिका में थे, वहाँ से फ्लाइट से आए, और 3-4 दिन का शेड्यूल जो है पूरी तरह डिस्टर्ब था। और हम देख पाते हैं कि अगर हम लोगों को एक रात जागना पड़ जाए तो अगले दिन ऐसा लगता है जैसा कि एक आधी बोतल चढ़ा रखी है, ऐसी स्थिति होती है व्यक्ति के उस समय। लेकिन महाराज 3-3, 4-4 दिन तक ना सोने पर भी अपनी साधना, अपना लेक्चर दिया, सब भक्तों से बातचीत करी, और महाराज कह रहे थे मेरा 2-3 दिन वॉक भी डिस्टर्ब हुआ है तो मुझे वॉक भी करना है, और महाराज ने फिर वॉक भी किया। और हमने देखा विशेष कि जिस प्रकार हमेशा महाराज के एक करुणा का जो है हमेशा चक्र चलता रहता है किसी के ऊपर भी, तो पार्क में आज गुरु महाराज हर आने जाने वाले व्यक्ति को हरे कृष्णा बुलवाते हैं। वहाँ पर एक ग्रुप बैठा हुआ था जो कि गार्डनर्स का था और अपनी बातों में मस्त था, और महाराज जो वॉक कर रहे थे लगभग 10 मीटर्स की दूरी पर थे, लेकिन फिर भी गुरु महाराज ने उनसे जोर से बोला, बोलो हरे कृष्णा। ऐसे गार्डनर भी बोले, और मैं हैरान था कि वो अपना मस्त हैं और हम चल रहे हैं, और अचानक महाराज ने उनको बोला हरे कृष्णा। वो लोग जो अपनी मंडेन टॉक में लगे हुए थे, अचानक गुरु महाराज को देखकर सबने हरे कृष्णा बोला। इतना ही नहीं, जितने लोग रास्ते में मिले सब लोगों को। तो एक शुद्ध भक्त चाहता है कि वो हर व्यक्ति के मुख से हरि नाम बुलवा दे या वो हरि नाम सुन ले, ताकि उनका भी जो आध्यात्मिक उन्नति है वो शुरू हो जाए। और हम सब भक्त लोग जो आज इस मूवमेंट से जुड़े हैं, शिला प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, कि महाराज ने हम जैसे भक्तों को स्वीकार किया है एज ए डिसाइपल, और ये एक बहुत बड़ी घटना है इतिहास में हम सब लोगों के जीवन में, क्योंकि प्रामाणिक संप्रदाय में 4 ही प्रामाणिक संप्रदाय बताए गए, और उसमें से एक ब्रह्म गौड़ीय माध्य संप्रदाय, और उसमें से भी हम लोगों को जो है एक प्रामाणिक गुरु प्राप्त हुए हैं। और जितने भी भक्तगण हैं, कई बारी जब भक्तों का आना होता है महाराज के पास तो कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, तो फिर कई बार विचार भी आता है कि हम सब डिसाइपल्स महाराज को कैसे, महाराज की सेवा कैसे कर सकते हैं। तो जब देखते हैं कई तरह की शिकायतें आ रही हैं, कई तरह के लोग कुछ ना कुछ बातें कर रहे हैं महाराज से, और इस प्रकार की जिनका कोई वैसे विशेष तुक भी नहीं है, और ज़्यादातर भक्त लोग एक दूसरे का लेग पुलिंग वाला काम हो रहा होता है, तो लगता है कि हम कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ऐसे एक विशेष दूत के भगवान का, जो कि यहाँ पर हम जैसी कंडीशन सोल को प्यूरिफाई करने आए हैं।
हमने देखा है कई जगहों पर कई इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं जहां पर कि कुछ लोग, हम जैसे भक्त लोग वैष्णव तरीकों का इस्तेमाल नहीं करते या वैष्णव सदाचार का पालन नहीं करते, और ज़्यादातर समस्याएं, दिक्कतें, परेशानियां इसी कारण से आती हैं। तो ये एक आज बहुत अच्छा दिन है कि जब हम लोग गुरु महाराज को फ्लावर ऑफर कर रहे हैं, अपने रिस्पेक्ट्स ऑफर कर रहे हैं या उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ऑफरिंग्स भी लिख कर दी हैं, कुछ लोग धनराशि भी अर्पित कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि आज के दिन हम लोग कुछ ऐसा ऑफर करें या कुछ ऐसा प्रण लें, कुछ ऐसा वाव लें जिससे कि हम लोग गुरु महाराज को एक ऐसा वातावरण बनाने का मतलब बना कर दें या एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार करें भक्तों के बीच में जिसमें आपस में सद्भावना हो, प्रेम हो और सबके हृदय में इच्छा हो गुरु महाराज की प्रसन्नता, उनके उद्देश्यों की पूर्ति। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो हमारे बीच में हाँ पुंडरीक विद्यानिधि प्रभु फ्रॉम पुणे। I most insignificant among insignificants, servants of the servants, Dasanudas, most fallen, Naradham, Pundarik Vidyanidhi Das Brahmachari, offer prostrated obeisances from the core of my heart unto the divine dual lotus feet of the one of the present Acharya of the International Society for Krishna Consciousness, Jai Om Vishnupad Paramahansa Parivajraka Acharya, Ashtotar Shata Sri Srimad Gopal Krishna Goswami Maharaj, Srila Bhagavad Pad, who is dearmost disciple of the founder Acharya of the International Society for Krishna Consciousness, Nitya Leela Pravishta Jai Om Vishnupad Paramahansa Parivajraka Acharya, Ashtotar Shata Sri Srimad Abhay Charanarvinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. My invocation, my condition, Guru Kripa hi Kevalam. मैं तो पापी तापी चापी कंगाल हूँ, मैं तो मरेला मुर्दा हूँ। गुरुदेव, I am a dead body, मरेला मुर्दा. You are my life, make me speak and express heartfelt feelings as an offering. Whatever I am, it is exclusively by your mercy, Gurudev. Guru Kripa hi Kevalam, Guru Kripa hi Kevalam, Guru Kripa hi Kevalam. Your devotion, your manifestation to shower mercy or prasadam. Your devotion, devotees from all the three worlds are stunned to see your extraordinary, miraculous devotional achievements in places like Pune, Mumbai, Delhi, and Russia. You are not an ordinary mortal being. Savetti vedyam nachatasyasti vetta. We cannot know you through our own power. It is only when you mercifully decide to reveal yourselves to us that we will achieve the great fortune of being able to see you. Your devotion, your manifestation to shower mercy or prasadam. Your manifestation, यद्यपि अमार गुरु चैतन्य दास तथापि जानिया आमी तान्हारा प्रकाश. Although I know that my spiritual master is a servitor of Sri Chaitanya, I accept you as a plenary or direct manifestation of Krishna. On this most auspicious occasion of your divine appearance, I just want to recite a traditional Saptakshari mantra, Bhavati Bhiksham Dehi. Please accept me by showering your merciful glance unto this most fallen disciple. So if you shower your mercy, then only both the devotees and Krishna will shower their mercy upon me. My special thanks to you, Gurudev, for your order, teach and train to solve all my problems, giving precious holy name. Guru Maharaj, please accept me, please accept my special thanks for intimately giving me recent and very confidential instruction for solving all my unlimited problems to get spiritual success, that is the chanting of the holy name of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. You are most fallen, you are most fallen, you are most fallen servant from Goshala Vrindavan. हरे कृष्णा। अब हमारे बीच में सुंदर गोपाल दास प्रभु, सुंदर गोपाल प्रभु,
इस्कॉन यूथ फोरम दिल्ली के डायरेक्टर हैं और जितने भी कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, हर जगह प्रचार करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। So, dear Guru Maharaj, today on your 69th appearance day, please accept my most humble and respectful obeisances. So, आज का जो दिन है तो कुछ पॉइंट्स जो है वो ओपन सीक्रेट्स, वैसे तो ओपन है पर सीक्रेट्स भी है, तो उन पॉइंट्स को थोड़ा शेयर करने का प्रयास करूंगा महाराज के गुणगान में। और टॉपिक है परफेक्ट गुरु एंड परफेक्ट डिसाइपल। तो ये जो इसमें कई सारे सीरीज है, तो उसमें जितना भी कवर हो पाएगा कर पाएंगे आज। तो आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला 3 भाग में है महाराज का। तो प्रारंभ होता है महाराज का आविर्भाव 14 अगस्त 1944 सोमवार के दिन, और श्रील प्रभुपाद का भी आविर्भाव हुआ था 1896 ईस्वी में। तो 1896 ईस्वी में दो बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। श्रील प्रभुपाद ने स्वयं बताया था कि 1896 में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने एक किताब लिखी थी और उस किताब को विदेशों में विदेश के एक कॉलेज की लाइब्रेरी में भेजा था। लाइफ एंड प्रिसेप्ट्स ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु। और ये जो दोनों थे कोइंसिडेंस नहीं थे। भक्ति विनोद ठाकुर ने किताब भेजी और फिर उन्होंने ये भविष्यवाणी भी की कि बहुत जल्दी जो है एक व्यक्ति जो है, अभी तो किताब भेज रहा हूँ, पीछे से व्यक्ति भी भेजूंगा जो किताब को जाके समझाएगा। तो प्रभुपाद उसी तरह से हम देखते हैं कि प्रभुपाद ने जो है अपनी पुस्तकों को पब्लिकेशन का कार्य जो शुरू किया 1944 ईस्वी में ही। बैक टू गॉडहेड मैगजीन फरवरी 1944 में शुरू किया पब्लिकेशन, लेकिन पब्लिकेशन के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। तो कोई व्यक्ति होना चाहिए जो इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करेगा। तो इसीलिए 1944 में जो है गुरु महाराज प्रकट हुए। और महाराज का नाम भी अद्भुत, डिवाइन नेम, गोपाल कृष्ण। बचपन से ही तो बचपन से जो नाम पड़ा, प्रभुपाद ने इसको नाम को चेंज नहीं किया दीक्षा के समय। और श्रील प्रभुपाद कहे कि ये नाम जो है यही नाम रहेगा आपका। और महाराज के संन्यास के बाद वही नाम रहा, क्योंकि डिवाइन नेम नेवर चेंजेस। उसके बाद और एक स्पेशल इंसिडेंस महाराज की लाइफ में 1 जून 1968 के दिन महाराज पहली बार श्रील प्रभुपाद से मिले। उससे पहले जो है एक दिन पहले महाराज मंदिर गए थे और बहुत ही आश्चर्यजनक चमत्कारिक मिलन गुरु और शिष्य का। चमत्कार क्या था? महाराज को प्रभुपाद के दर्शन से पहले ही, उनसे मिलने से पहले ही सेवा प्राप्त हो गई। और सेवा क्या थी? श्रील प्रभुपाद का जो क्वार्टर था उसको अरेंज करने का, क्लीन करने का सेवा था। और महाराज ने वो सेवा इतना अच्छे से किया और अभी भी कर रहे हैं। उस समय अपार्टमेंट क्लीन किया, अपार्टमेंट को अरेंज किया, अभी जो है प्रभुपाद के मिशन को अरेंज कर रहे हैं, मिशन को क्लीन कर रहे हैं, इस्कॉन को अरेंज कर रहे हैं। इस्कॉन प्रभुपाद का अपार्टमेंट ही है, एटर्नली रिलेटेड। 2 वीक के अंदर मिलने के बाद महाराज ने डिसाइड किया कि मैं, प्रभुपाद मेरे गुरुदेव हैं। और उसके बाद प्रभुपाद जब प्रवचन देते थे, कई भारतीय लोग आते थे सुनने के लिए, लेकिन प्रभुपाद
महाराज को जब देखते थे तो बहुत स्पेशल अफेक्शन महाराज के प्रति प्रभुपाद का होता था। क्यों? जैसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर, जब श्रील प्रभुपाद दीक्षा के लिए नाम गया तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा कि आई विल गिव हिम इनिशिएशन। वाई? बिकॉज ही लाइक्स टू हियर। तो श्रील प्रभुपाद ने भी ऐसा ही कहा कि दिस person, this boy is very special. Why? Because so many Indians comes in my class, they sit for some time, then they go away. But this boy, he likes to hear. He stays till the end. So Prabhupada was very much impressed by Maharaj's hearing ability. कुछ स्पेशल इवेंट्स हैं। एक बार की घटना है, महाराज वो जब इंडिया आ गए थे, विदेश से जब इंडिया आए थे महाराज, तो ये महाराज का एक लेटर है जिसमें ये हुआ था। ये 1969 में 31 जुलाई 1969 का लेटर है। प्रभुपाद ने महाराज को लिखा है ये लेटर। महाराज ने एक लेटर लिखा था प्रभुपाद को। उसमें महाराज ने कहा था कि मुझे एक आइडिया आ रहा है। आइडिया ये है कि मैं बीटीजी के पब्लिकेशन के लिए एक कंपनी शुरू करना चाहता हूँ। द लॉस एंजलिस प्रभुपाद ने कहा उत्तर में, रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बीटीजी और माई पब्लिकेशंस, आई वेलकम योर फ्लोटिंग ए कंपनी योर सेल्फ फॉर दिस पर्पस। मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आप एक कंपनी ऐसा खोलना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। इन दैट केस योर कंपनी विल बी अनदर डिपार्टमेंट ऑफ द सोसाइटी। लेकिन वो जो कंपनी होगी वो हमारे सोसाइटी का एक हिस्सा होगा। ऑल्दो द सोसाइटी हैज नो इंटेंशन टू इंटरफेयर विथ योर बिजनेस। और फिर प्रभुपाद लिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, बट योर बिजनेस विल बी कंसिडर्ड एज माई बिजनेस। So think of it very carefully and it will be very nice. 1969 में प्रभुपाद ने एक और लेटर लिखा था, 3 सितंबर 1969। प्रभुपाद ने humility and submissiveness appreciated by Srila Prabhupada. I thank you very much for your submissive mentality and as it is stated in the Bible that God is for the humble and meek. Similarly, Vaishnavas are taught by Lord Chaitanya to become humbler than the grass and more tolerant than the tree. Thus one can seriously execute progress in Krishna consciousness. So Prabhupada ने अप्रिशिएट किया महाराज के ह्यूमिलिटी को, सबमिसिवनेस को। एक दूसरे पत्र में प्रभुपाद लिखते हैं महाराज के लिए, I am very glad to learn that you are doing spiritual activities very nicely and you are always alert to see whether you are committing some offense. This is very nice attitude. In rendering service to Lord Krishna and his representative, the spiritual master, we should always maintain this fearful attitude, which means careful attention. This attitude will advance you progressively in Krishna consciousness. और ये लास्ट पॉइंट जो प्रभुपाद ने जो लिखा है, यू आर सो नाइस, ध्यान से सुनिएगा, you are so nice and eager to serve Krishna, so all blessing of Krishna will be bestowed upon you. Rest assured. और प्रभुपाद ने एक जगह महाराज को ऐसा आशीर्वाद दिया जो कि बहुत ही दुर्लभ है। और प्रभुपाद ने, महाराज एक एक चीज प्रभुपाद से कंसल्ट करते थे। एक जगह लेटर में प्रभुपाद इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, I am very pleased to note that in such things you consult me. This is a very nice habit. You will please always consult me. प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हमेशा आप मेरे से कंसल्ट करोगे before doing anything, and I shall try to guide you to my best abilities. और प्रभुपाद जो हैं वो
महाराज को एक इंस्ट्रक्शन दिए थे जो मेरे से भी थोड़ा रिलेटेड है, इसलिए मैं थोड़ा पढ़ रहा हूँ आप सब वैष्णव की प्रसन्नता के लिए। यूथ प्रीचिंग ए ग्रेट सर्विस टू कृष्णा, ये लेटर है 5 जून 1969 का। इफ यू हैव अंडरस्टूड कृष्णा कॉन्शियसनेस साइंस, प्रभुपाद बोल रहे हैं महाराज को लेटर में, देन यू विल ट्राई टू रिवाइव दिस कल्चरल लाइफ इन इंडिया। ऑफ कोर्स, so long I shall live, I shall give you all assistance. But if you concentrate your energy in a city like Bombay for propagating Krishna consciousness amongst the younger generation, as I am doing here in Western world, it will be great service to Krishna and to your country. I have already asked you to think on the project, how you can push on our books and literatures. I cannot suggest any other alternatives. But if you can execute this will of mine, I shall remain ever obliged to you. तो प्रभुपाद यहाँ पे गुरु महाराज को बता रहे हैं कि if you concentrate your energy in preaching Krishna consciousness amongst the younger generation. So from this we can understand that that's why Maharaj always inspires us for youth preaching and colleges and university preaching. Because once I asked Guru Maharaj that, Maharaj, how important is youth preaching in its contribution in Krishna consciousness movement? And Maharaj told that Prabhupada personally told me that it's very, very important service to preach to the educated younger generation, because they will become very important, they will play very important role in the our movement, spreading our society. So thank you very much, Guru Maharaj, for engaging myself in the service, although I have no qualification, and whatever is little bit is also, there is that little bit sincerity, that also sometimes there, sometimes not. So I am very heartily grateful. I express today my heartfelt gratitude at your lotus feet, and please accept me as your servant. Hare Krishna. Srila Guru Maharaj ki. हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नीति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यम या प्रकाश वितीर्येष्ट प्रचारम कृतवान साधु भगवत पदाय नमः। Respected Srila Gopal Krishna Goswami Guru Maharaj Ji, Hare Krishna. Kindly accept my most humble obeisances under the dust of your lotus feet. All glories to you and your service. Guru Maharaj Ji, you are an unlimited reservoir of auspicious transcendent qualities. I am mentioning a few of them just at the tip of the iceberg as follows. You, Guru Maharaj Ji, are an expert preacher of Krishna consciousness. Like in the case of your talks with a large company director, when our ISKCON feeding program needed automatic catching equipment urgently, amounting to about 7.5 million rupees. It was very difficult arranging these funds in so little time. But you very expertly preached to him, and he sponsored all the kitchen equipments immediately, facilitating Krishna Prasad distribution to additional 80,000 people daily. You are also a very pleasing talker, Guru Maharaj Ji. Like in the case of a prominent person visited ISKCON temple at Delhi, and he complained that the person was unsatisfied with some experience at some other ISKCON temple. You pleasantly talked, and the person was not only pacified, but gave lots of donations and inputs thereafter in various ISKCON projects regularly. Guru Maharaj Ji, you know the heart of persons. This was clearly visible in the Russian devotee case at New Delhi. The Russian devotee came from Moscow, and he told me of his problems, questioning to me in Russian language, and he asked me to translate them to you during your darshan at the temple. Amazingly, you came there somehow and gave answers to all his questions in fluent Russian language without anyone informing you about his problems to you. You know the heart of people, Guru Maharaj Ji, anyhow. You are extremely polite and speak meaningful words. The words from your mouth contain volumes of meanings. They are very pleasing and change the heart of people you speak to. One instance I remember is when a businessman approached you for some commercial benefit in India and wanting to have ISKCON association. We were really confused how to refuse him without losing him to come to ISKCON temple.
Then you spoke to him so politely and refused him that he understood, plus ordered 10,000 Gitas in the month of Marathon. Your words did magic on him, Guru Maharaj Ji, always. You inform your disciples about their upcoming problems in advance with solutions for their spiritual life due to your very compassionate nature, Guru Maharaj Ji. You go out of the way to remove sufferings of people by giving them Krishna consciousness. You are very caring towards those who come in touch with you. You recognize, appreciate, and very respectful to your God brothers who affirm and acknowledge your love for them. You are quick to forgive offenders like me, Guru Maharaj Ji, and along with forgiving, you engage the offenders in devotional service so that I can become fortunate. You are a genius, Guru Maharaj Ji. Srila Prabhupada takes special pride in having you as his son disciple. We hear from your God brothers that you are very, very Prabhupada conscious. You are a veteran bulk book distributor in multiple locations globally and who knows to other planets also with 100% advance payments. You inspire many others too in book distribution internationally, which is ISKCON's most important activity. You are a very steadfast spiritual business tycoon and a prominent brigadier in Sri Chaitanya Mahaprabhu's Transcendental Army. You are my hero, Guru Maharaj Ji. On this most auspicious day of your Vyas Puja, I beg at the dust of your lotus feet, Guru Maharaj Ji, to kindly forgive me for all my offenses and kindly eternally engage me in devotional service, Guru Maharaj Ji. With best regards, your aspiring disciple, Rakesh Shobroy. Hare Krishna. बहुत बहुत धन्यवाद राकेश भाई। तभी पंचरत्न प्रभु बहुत सीनियर भक्त हैं हमारे, और उसके बाद राम भक्त प्रभु, फिर कृष्ण रूपा माता जी और श्याम कृपा माता जी। और देखिए आप से अनुरोध है कि उपहार देने के बाद कोई जाना नहीं चाहिए, आप लोग बैठिए क्योंकि अभी केक कटिंग सेरेमनी है। महाराज जी के हाथ से एक बार फिर केक कटेगा और महाराज के मुखारबिंद से शायद आशीर्वचन भी होगा और कीर्तन महाकीर्तन जो महाराज करेंगे इसका पूरा आनंद उठाइए। कोई जाएगा नहीं, कृपा करके बैठ जाइए। सब सीटें खाली हैं, फिर आप नहीं बैठ रहे हैं, क्यों खड़े हैं? सब बैठ जाइए, सब कृपा करके बैठ जाइए। हरे कृष्ण। Hare Krishna. My dear Guru Maharaj, please accept my respectful obeisance in the dust of your lotus feet. All glories to Sri Prabhupada, Srila Prabhupada. I pray to Lord Krishna that He showers all His mercy so that you may live a long and healthy life. By this special mercy of you may deliver so many fallen souls like me. This is my only prayer unto Lord Krishna on this auspicious appearance day of my Guru Maharaj, Srila Bhagavad Path. I have one strong desire that I may become a good Krishna conscious devotee and be able to control my all senses along with my crazy mind, so that I can be helpful in Srila Prabhupada's mission by engaging in the service of all the Vaishnavas and become free from envy. Your servant, Pancharatna Das. Hare Krishna. His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj ki. नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी निति नामिने प्रभुपाद से साहित्यम या प्रकाश वितीर्य च प्रचारण कृतवान साधो भागवत पादते नमः। तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कुछ इंसिडेंट हैं, भक्तों ने सबने बताया ही है और अपना अपना रियलाइजेशन, तो हम भी कुछ शेयर करना चाहते हैं। तो हम इनिशिएशन के लिए कुछ भक्तों को महाराज के पास में लेके जा रहे थे, तो हमने बोला कि महाराज से कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हो आप। तो एक भक्त ने महाराज से प्रश्न पूछा। महाराज वर वेरी क्लियर कट, है ना, कोई इधर नहीं है, 1 मिनट में आंसर देते हैं महाराज, खींचते नहीं हैं ज़्यादा बातों को। तो एक ने बोला कि महाराज एक्चुअली मैं पहले किसी गुरु से इनिशिएशन ले चुका था, तो मैं फिर से इनिशिएशन ले सकता हूँ। तो महाराज ने 2 लाइन में आंसर बोला। महाराज ने बोले कि वो परंपरा से है क्या? बोले नहीं महाराज। तो महाराज बोले डोंट वरी, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ है ना, डोंट वरी, कुछ सोचो मत। और इस तरह तो फिर एक भक्त ने बोला महाराज कभी कभी ऐसा सुनने में आया है कि दीक्षा लेने के बाद जो है आपसे मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, यही एक टाइम है जहां आप मिल सकते हैं, बाद में नहीं मिलेंगे आप। तो महाराज ने बोला ना, महाराज ने बोला ऐसा नहीं है, मैं तो हमेशा दिन भर मेरा भक्तों से ही मिलता हूं। मैं तो फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग आई ऑलवेज मीट डिवोटी। So Guru Maharaj said Guru is very sensitive. Maharaj used the word Guru is very sensitive. So even मैं राधे श्याम प्रभु का ग्लोरिफिकेशन सुन रहा था, तो वही बता रहे थे कि महाराज आते हैं जब
तो महाराज पहले जीबीसी लेवल पे बात करते हैं, अपना जो ड्यूटी है उसका बात करते हैं, मेरे को पर्सनली बुलाते हैं और पूछते हैं कोई दिक्कत तो नहीं है आपको बताइए, और बाद में फिर दूसरी बार बुलाते हैं आपका साधना ठीक चल रहा है। ही एक्ट एज ए गुरु ऑल्सो एंड ही एक्ट एज ए जीबीसी ऑल्सो। तो महाराज बोले पर्सनली ध्यान रखते हैं बहुत ज़्यादा। सो महाराज सेड ही सेड अ गुरु द पोस्ट इज़ वेरी सेंसिटिव। सो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो कई भक्तों ने का रियलाइजेशन भी कैसे महाराज जो है चींटियों का उद्धार भी करते हैं। तो मॉर्निंग वॉक में कई बार हम जाते हैं, तो दिल्ली में महाराज के साथ गए थे मॉर्निंग वॉक करते हुए, और सडनली महाराज बोले आप आगे चले जाओ। तो हम आगे चले गए, तो हम पीछे आके देखा तो महाराज वहाँ बैठ गए। तो मैंने बोला कि क्या कुछ हो गया लगता है महाराज। तो हमें भाग के पीछे आया तो देखा है क्या यहाँ, देखा तो बहुत सारी चींटियाँ थी और महाराज हरे कृष्णा महामंत्र कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो सो कंपैशनेट, ही ऑलवेज वांट टू डिलीवर ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी। जिसको भी देखते हैं महाराज उसको छूते हैं और उसको कृष्ण नाम देते हैं। और मैं प्रभुपाद लेक्चर सुन रहे थे और प्रभुपाद बता रहे हैं कि जैसे फर्स्ट चैप्टर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ भीष्मा देव, तो महाराज बता द क्वालिटी ऑफ द प्योर डिवोटी, दे ऑलवेज want to fight for Krishna. So even in the old days, Bhishma is not staying in the kingdom. He is a leader, he is a Kshatriya. Even in the old days, in the front line. So you can see even Maharaj examples also. In 69 age, Maharaj always in the front line. He never stay back कि अपना रूम में थोड़ा बैठ लिया और तुम आगे जाओ। महाराज आगे खुद जाते हैं करने के लिए और हम अपने चरित्र से सिखाते हैं। और पर्सनली महाराज बहुत इंस्ट्रक्शन देते हैं। अहमदाबाद में थे तो महाराज बोले रामभद्र आई थिंक योर वेट इज इंक्रीजिंग। तो बड़ा महाराज इंटेलिजेंटली बोलते हैं, मैं कुछ बोला नहीं, फिर बात बोला आई थिंक योर वेट इज इंक्रीजिंग। तो फिर बाद में हिज सुंदरगौल को बोला आई थिंक रामभद्र प्रभु's वेट इज इंक्रीजिंग। तो फिर मैं थर्ड टाइम जब मंदिर में आके बोला, महाराज बोले तुम थोड़ा गुरु पूजा में ज्यादा डांस करा करो। He cares so much, that devotee should be very thin and they could go on for the service. And the last thanks for this year also Maharaj awarded that although I was not qualified, and Maharaj gave the second initiation, and I am very thankful to the Maharaj. And I always pray at the lotus feet of Guru Maharaj. Always give me the shelter of lotus feet so I can develop the taste for the holy name and I can serve the devotees in a temple. With my exemplary behavior, and I can serve you life after life. Thank you very much, Mother. Hare Krishna. धन्यवाद। और कृष्ण माता जी और उसके बाद श्याम रूपा माता जी, समा कृपा माता जी, और लास्ट में हरादास प्रभु। हरि बोल। फ्रॉम मुंबई। हरे कृष्णा। महाराज के कुछ गुणों पर मैं थोड़ा स्ट्रेस करना चाहूँगी और मुझे माफ़ कीजिए, मेरी हिंदी बहुत बुरी है इसलिए मैं इंग्लिश में देना चाहूँगी। जस्ट एज अ सोल एंड कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी सेपरेटेड, सिमिलरली आवर गुरु महाराज एंड श्रील प्रभुपाद कैन नॉट बी सेपरेटेड, नॉट अ स्प्लिट सेकेंड कैन गुरु महाराज बी सेपरेटेड फ्रॉम श्रील प्रभुपाद। ही एंड वाई? बिकॉज श्रील प्रभुपाद and Guru Maharaj are intact, and Guru Maharaj understands the heart of his Guru. Why does he understand? Because Srila Prabhupada has invested his mercy upon Guru Maharaj. And these 14 temples in Delhi, it is the fruit of one disciple, our Guru Maharaj, being chaste and loyal to his Guru in action. The symptoms of a sadhu are that he is tolerant, merciful, friendly to all living entities. He has no enemies, is peaceful, abides by scriptures, and all his characteristics are very sublime. Lord Krishna tells Uddhava in Srimad Bhagavatam, with the dust of my lotus feet, dust of my devotees' lotus feet, I desire to purify the material worlds which are situated within me. My devotees are free from personal desires, wrapped in thoughts of my pastimes and peaceful. So why do pure devotees appear on this material world? It is to establish and remind us about the goal of our life.
and in our hearts to attract our mind back to the lotus feet of Krishna, so that we can see the Lord everywhere and in every living thing, so that we can serve Krishna, we can love Krishna. Actually, the real spirit of Vyas Puja is to come together to learn the science of purifying our hearts by glorifying the pure devotees of the Lord. We must approach the Guru not for our personal pleasure, but for his pleasure. To the degree we approach Guru, the Guru will reveal himself to us. If you see, Maharaj takes so much of pain and agony. Selfless service is another quality of Guru Maharaj. Another beautiful quality of Guru Maharaj is his dedicated service for past so many years and non-stop service to Srila Prabhupada. And how many of us would do this service non-stop for years to come? A total giving of himself to the mission of Srila Prabhupada for the pleasure of the Lord. So we have to be willing to be selfless servant of the Lord and his devotees. This is the meaning of bhakti, unconditional faith and trust in the divine will of the Lord. This is what we see from Maharaj's life. So when we come in front of the Guru, we must ask the Guru, how can I serve you? How can I make you happy? How can I make your devotees happy? And just try to be the humble servant of the servant of the servant. और मैं आपको एक बहुत अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी। 27 जुलाई हम लोग एक बहुत बड़ा आर्ट ऑफ लिविंग हैप्पीली प्रोग्राम करने वाले थे गर्ल्स के लिए, और इस प्रोग्राम के लिए मुझे बहुत पहले ही एक बाधा आ रही थी और मैंने महाराज जी को जाके जस्ट अप्रोच किया और मैंने महाराज को अपनी परेशानी बता दी। हालांकि उस दौरान मैं बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन क्योंकि महाराज जी ने आशीर्वाद दिया था, हम लोग ये 27 जुलाई को ये प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से कर पाए। और मैं हर वक्त ये महसूस कर रही थी कि महाराज बिल्कुल मेरे बगल में ही है और हर वक्त मुझे उत्साह दे रहे हैं। और उन्हीं आर्ट ऑफ लिविंग में से जो लड़कियां निकली, करीबन 53 गर्ल्स निकली, और उन लोगों ने जन्माष्टमी वाले दिन 1300 बुक्स डिस्ट्रीब्यूट किए श्रील प्रभुपाद की फर्स्ट टाइम। ये सारी गुरु महाराज की कृपा। मुझे उस दिन जन्माष्टमी जैसे लगा कि महाराज हर बार हर क्षण मेरे साइड में है और हमें उत्साह दे रहे हैं। Now more to go, one more to go, one more to go. And the girls were, although मैं enthusiastic and girls were not stopping. हमारा स्टॉक खत्म हो गया, लेकिन लड़कियों को इतना उत्साह था कि वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉप नहीं करना चाहती थी। Ultimately I had to tell them to stop. So Maharaj, I am very grateful to you and thankful to you. Please give me your blessings so that I can follow all your instructions at all times and try to be the humble servant of the servant of the servant. Hare Krishna. धन्यवाद। और श्याम कृपा माता जी, और उसके बाद हरादास प्रभु फ्रॉम मुंबई। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अभी मैंने अप्रोच किया प्रभु जी को कि मुझे भी बोलना है, और मैंने यहीं बैठे हुए 5-7 मिनट पहले कुछ पॉइंट्स लिखे। जो सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा ब्रह्मा जी का, कि जब कृष्ण आए थे और वो अपनी बाल लीलाएं कर रहे थे तो ब्रह्मा जी देख के कंफ्यूज हो गए कि ये कैसे भगवान हो सकते हैं, जो सबके साथ खेल रहे हैं, खा रहे हैं और इतना ऑर्डिनरली बिहेव कर रहे हैं। तो गुरु महाराज भी इतने सिंपल हैं कि उनकी इतनी सिंप्लिसिटी और इतनी डीप जो डिवोशन है और इतने डीप जो कार्य हैं वो समझ से बाहर हो जाते हैं, और इसी प्रकार के अपराध मेरे जैसे नाबालिग से भी हो जाते हैं। और इसका रियलाइजेशन है कि जैसे हम किसी चीज़ को जब करते हैं तभी पता चलता है कि वो करना कितना डिफ़िकल्ट है। दूर से देखना और उसके बारे में सोचना ये एक बात है, लेकिन जब उस पर करना और उस पर चलना तब रियलाइज़ होता है कि बहुत मुश्किल है। जैसे मैं श्रीमद् भागवतम पढ़ रही थी, तो जब ध्रुव महाराज का सेक्शन पढ़ रही थी तो बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन था कि कैसे वो स्ट्रगल करके और बहुत अच्छे से तपस्या करके भगवान को प्राप्त कर लिया। जब वो जा रहे थे तो देवी देवता फूल बरसा रहे थे। तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि ये तो बहुत आसान है भगवान को प्राप्त करना, ये मेरे लिए भी बहुत आसान है। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं और ये समय बीत रहा है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है।
ऐसा नहीं लगता कि 1% भी इसको पास कर पाए। तो इसी प्रकार से जैसे जैसे गुरु महाराज की इतनी सिंप्लिसिटी है, वो इतना ज़्यादा कंफ्यूज करती है मेरे जैसे नासमझ व्यक्ति को कि अपराध हो जाते हैं। और एक बार मैं एक सेवा का मौका मिला था प्रभु जी के द्वारा कि एक जगह लेक्चर देने जाना था, और मैं मना कर रही थी लेक्चर के लिए क्योंकि वहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड सो कॉल्ड मटेरियलिस्टिक लोग आते हैं जो पोस्ट में बहुत अच्छे हैं। तो मुझे थोड़ी सी चिंता हो रही थी क्योंकि मेरी रियलाइजेशन वीक थी, क्योंकि गुरु निष्ठा इतनी कभी अप एंड कभी डाउन चलती है, तो इसकी वजह से रियलाइजेशन भी उसी रेशियो में अप एंड डाउन चली जाती है। लेकिन प्रभु जी ने बोला कि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है और मुझे ही जाना है। तो जब मैं बैठी और देखा वो इतने बड़े बड़े कंपनी से वो लोग बैठे हुए हैं और मुझे बहुत घबराहट हुई, और फिर मैंने आंखें बंद की और गुरु महाराज को प्रणाम किया और तहे दिल से मैंने प्रे किया कि गुरु महाराज आप बोलिए इस लेक्चर में, मेरे थ्रू आप बोलिए, मैं नहीं बोल पाऊंगी। और जब वो लेक्चर शुरू हुआ तो मुझे नहीं पता कौन बोल रहा था, लेकिन इतना पावरफुली वो बोला जा रहा था लेक्चर कि मैं खुद भी उस लेक्चर को सुन के एंजॉय कर रही थी। और मुझे लग रहा था कि अगर प्राइम मिनिस्टर भी बैठा हो तो मुझे कोई चिंता नहीं, आई कैन स्मैश एवरीबॉडी थ्रू दिस नॉलेज। तो बहुत अच्छा रियलाइजेशन था। तो मैंने ये मौका इसलिए चाहा कि मैं बोलूं क्योंकि मैं आज के दिन गुरु महाराज से अपने अनन्य अपराधों के लिए क्षमा चाहती हूँ। और ये मेरा प्रोग्रेसिव, जैसे एक बच्चा गिरता है खड़ा होता है बार बार, तो ये अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं। तो गुरु महाराज को तो बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने एक बार महाराज से बहुत पहले बोला था कि महाराज मेरे से जो अपराध हो जाते हैं उनके लिए मुझे क्षमा कीजिए। तो महाराज ने, बहुत सालों पहले की बात है, महाराज ने बोला कि द ऑफेंसेस यू कमिटेड इन द पास्ट, द ऑफेंसेस यू कमिटिंग नाउ and the offenses you will commit in the future, I forgive you for all the offenses, you have a blank check from me। तो ये उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो तो पहले से ही माफ करके ही चल रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं किसी ना किसी तरह उद्धार हो बद्ध जीवात्माओं का। लेकिन ये मैं अपने प्योरिफिकेशन के लिए इस मौके को मैं ढूंढ रही थी। एक बार मैं गुरु महाराज के पास गई, बहुत पहले की बात है, और मैंने महाराज को बोला कि आई सी problems in people who are trying to be devotees। तो महाराज ने कहा, do you see problem in them or in yourself? बस इतना ही बोला और मैं चुप हो गई। मैंने कहा in myself and I came back। तो बहुत अच्छी लर्निंग थी। मैं शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी की जो बुक है अमृतवाणी, उसके जो 108 पॉइंट्स हैं, सुंदर गोपाल प्रभु ने हमें इंस्पायर किया था वो बुक पढ़ने के लिए। तो उसके 108 पॉइंट्स में पढ़ रही थी, उसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कह रहे हैं कि ये असंभव है अपने अनर्थों से बाहर निकलना गुरु की कृपा के बिना, ये असंभव है। और गुरु की कृपा कैसे प्राप्त होती है? जब दिल से हम ऑनेस्टली उनको सर्व करते हैं, दिखाने के लिए नहीं, बाहर बाहर से दिखाने से या पास जाने से या उनको दिखा के सेवा करके। गुरु ब्लेसिंग्स वो जानते हैं सब कुछ। चैत्य गुरु के रूप में भी कृष्ण, और कृष्ण बाहर से जो गुरु भेजे उनके रूप से भी वो जानते हैं कि शिष्य कितना सिंसियर है। तो वो स्मैश करना चाहते हैं सारे अनर्थों को, बस हमें ऑनेस्ट बनने की जरूरत है। एंड गुरु गिव्स प्रोटेक्शन। अभी श्रील प्रभुपाद जी का लेक्चर था लास्ट फ्राइडे, तो मैं कुछ प्रोटेक्शन को लेकर सोच रही थी कि कैसे भौतिक जगत में खतरा बढ़ता है, किस किस तरह की विपदाएं आती रहती हैं। तो शिला प्रभुपाद मैं सोच रही थी, तो शिला प्रभुपाद कह रहे थे गुरु गिव्स ऑल द प्रोटेक्शन। इफ वन टेक शेल्टर ऑफ हिज गुरु देन ही गिव्स ऑल द प्रोटेक्शन। ऑल प्रोटेक्शन कम्स फ्रॉम वंस गुरु। तो मैं एक मेरा अनुभव था, मैं देख रही थी कुछ टाइम से, जैसे गुरु महाराज का व्यास पूजा सेरेमनी आ रही है और जैसे डिवोटीज बहुत भाव से, जैसे कि रामभद्र प्रभु भी कह रहे थे कि लोग डिवोटीज गिफ्ट लेकर आते हैं, अलग अलग तरह के गिफ्ट, कुछ तो पैसे के रूप में या कुछ और गिफ्ट या कुछ जैसे कार के रूप में इत्यादि। लेकिन बेस्ट गिफ्ट है जैसे शिला प्रभुपाद कह रहे हैं उपदेशामृत बुक में कि हम स्ट्रिक्टली, अगर उपदेशामृत में जो लिखा प्रभुपाद ने कि हम स्ट्रिक्टली रूप गोस्वामी के दिए गए नियमों के अनुसार अगर हम चलेंगे, तो ये अगर हम चलेंगे तो हमारा प्योरिफिकेशन एडवांसमेंट होगा। और इससे बड़ा गिफ्ट लेने के लिए तो गुरु महाराज आए नहीं।
यही गिफ्ट है कि हमारा उद्धार हो और हम वापस जा सकें और महाराज का बर्डन हो। हरे कृष्ण। सही बात। थैंक यू। हरे कृष्ण। हिज ग्रेस हरा प्रभु मुंबई से। श्री भगवत्पाद की, श्री भगवत्पाद महाराज की। सनातन गोसाई बोलते हैं अखणो फलमता दुसदर्शन ही, जीवा फलमता दुसकृत नहीं, तन्नो फलमता दुसदर्शन ही, सुदल भगवत ही लोके। वास्तविक आग का सफलता है जीवन में इस महान महान व्यक्ति को दर्शन करना। जैसे आज हम लोग स्पेशल, हम लोग भी बड़े भाग्यवान है कि आज हम लोग एक चरम चक्षु के द्वारा भगवान के शुद्ध भक्त श्री भगवत्पाद को हम लोग दर्शन किए। अखणो फलम तो दुसदर्शन ही, जीवा फलम, जीव का वास्तविक सफलता है उनके गुणगान करना। तन्नो फलम, शरीर की सफलता है उनके लिए अपन शरीर को निछावर कर देना चाहिए। सुदुर्लभ भागवत ही लोग, ऐसे भागवत के प्रति महाराज का नाम ही भगवत्पाद है। और व्यक्ति भागवत, बुक भागवत, व्यक्ति भागवत ही हमारा महाराज यहाँ पे उपलब्ध है। इसलिए हम लोग को महाराज के प्रति समर्पित होना चाहिए। इसी पर उदाहरण बता गया, इसी पर एक मछुआर जब परिवार मेंटेन करने के लिए जाता है, पूरा नदी के समुद्र के बीच में जाता है और परिवार को, फैमिली को पालन पोषण करने के लिए और खतरा उठाता है। उसी प्रकार हमारा परम पूज्य श्री गुरुदेव भौतिक संसार में माया का सागर है, माया का संसार है, सागर के समान कहा गया। संसार सागर रूपेण, संसार सागर के समान है। मीन रूपेण मानवा, जो मीन है, मीन के समान कौन है? मनुष्य है। ये भटकते संसार में, जैसे मछुआर मछली पकड़ता है, लेकर आता है, अपना परिवार मेंटेन करता है, उसी प्रकार श्री भगवत्पाद ऑल वर्ल्ड को घूमते रहते हैं। किसको पकड़ के? सब भगवत चैतन्य महाप्रभु के चरण में लेके समर्पित करते हैं। इसलिए भगवत के दिव्य गुण को देखिए कैसे। इसलिए हम देख सकते हैं जैसे कि जब भगवान चैतन्य महाप्रभु गए थे, एक बार उनके पिताजी का शरीर त्याग करते पिंडदान के लिए गए थे, रास्ते में उनको बुखार हो गया। बुखार हो गया तो वो बोलते हैं मेरे को बुखार हो गया। वो तो उस टाइम उन्होंने एक भक्त के चरण की धूली मांगते हैं, बोलते हैं जो ब्राह्मण गांव में है वो ब्राह्मण के चरण की धूली मिलेगा, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। उसमें से दिखाते हैं कि ब्राह्मणों के चरण की धूली कितना है। इसलिए हम लोग आज लोग कितने बड़े भाग्यवान है, सबसे महान शुद्ध भक्त के चरणों हमको मिला है। कहा गया भक्त पद रज, भक्त पद धूली, भक्त भुक्त अवशस, तीनों महाबल। तीन चीज को मिलता है वो कृष्ण प्रेम प्राप्ति कर सकता है। इसलिए हमको आज श्री प्रभुपाद की कृपा से, महाराज की कृपा से ये तीनों चीज सबको प्राप्त हुआ है। इसलिए हम सब भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, महाराज के दिव्य संदेश को सर और फैलाना चाहिए और हमेशा के लिए महाराज का दासत्व स्वीकार करना चाहिए। यही मेरे अनुरोध है। हरे गोपाल गोस्वामी महाराज की, माता जी नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी इति नामिने। नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने। प्रभुपाद सहितं ये प्रकाश वितीर च प्रचारं कृतवन् साधु भगवत्पदायते नमो नमः। Dear Guru Maharaj, please accept my humble obeisances at the dust of your lotus feet. All glories to Srila Prabhupada, all glories to you. Today, I feel blessed and fortunate to be here in front of my spiritual master and speak few words for his glorification, in spite of my not being qualified. Guru Maharaj, you are an ocean of mercy and full of compassion to all the conditioned souls like me. And so today, on the most auspicious day of your Shri Vyas Puja celebration, I humbly beg for a drop of your boundless sense of humility, your sense of surrender and dedication to your divine spiritual master, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, and your complete sense of dependence on the mercy of Lord Chaitanya and Lord Krishna, so that this insignificant soul
can gather strength to execute your divine instructions and chant good 16 rounds. As it is stated in Guru Ashtakam, Yasya prasada bhagavat prasado, Yasya prasada nagati kultoti, Chayantu vansasya Yasya Sri Sandhyan, Vande Guru Sri Charanarvindam. By the mercy of spiritual master, one receives the benediction of Krishna. Without the grace of spiritual master, one cannot make advancement. Therefore, I should always remember you, my spiritual master. It is stated that pure and empowered Vaishnava is who at first sight can attract others to Krishna consciousness and inspire them to chant Hare Krishna. And I saw this personally, Guru Maharaj, in my life when I first saw you 15 years back. I was completely mesmerized by your divine presence, and you put your divine glance on this fallen soul like me, and since then my whole life has changed. Guru Maharaj, you were and you are such a pure, empowered Vaishnava. Guru Maharaj, on this auspicious day of your Vyas Puja, please allow me and my family to remain at your lotus feet as a speck of dust forever, and never let me drift away from this most wonderful shelter. Aspiring to remain your servants eternally, Sumukha Das, Krishna Leela, Gayatri and Janvi. And I would like to request to all the Vaishnavas and the Vaishnavis sitting here to please chant with me once for our Guru Maharaj's everlasting good health. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare हरे कृष्ण। श्याम हरि प्रभु, श्याम हरि प्रभु, जो कि श्याम हरि प्रभु जो विश्व पिलानी में प्रचार करते हैं, वे भी अपना विचार व्यक्त करेंगे। और इसके बाद नहीं, तो हमारे लास्ट श्याम हरि प्रभु, उसके बाद केक कटिंग सेरेमनी एक बार फिर होगी, और फिर महाराज जी के मुखारविंद से आशीर्वचन 5-10 मिनट का, और फिर कीर्तन होगा, और उसके बाद प्रसाद। श्याम हरि प्रभु, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामिने प्रभुपादस्य साहित्यं प्रकाशवती च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। I was just thinking about the 15th chapter of Bhagavad Gita, where Krishna speaks about the material world as an inverted banyan tree with roots going up and the branches going down. So I was thinking, Guru Maharaj, that how can I glorify you, because you are in reality and I am in the inverted side. So on the inverted side of the material world, if we try to see the spirituality, then surely the vision is not going to be very proper. So it's very difficult to glorify you. Acharya Singh, Vedagaya Jahada Charita, that the Vedic Shrutis, they are singing the glories of your glories, and while addressing Vyasudev, Narad Muni calls him as Shuchi Shrava, that his glories are spread among the pure personalities. Very, very pure personalities, the previous acharyas, they glorify personalities like you. So feeling very unqualified to say anything. But just like Lord Brahma, in his prayers to Krishna says that if one has received even a little bit of mercy, prasad lesha nugrita evahi, he can glorify you
Similarly, by your mercy, I would like to say a few words. Krishna himself in Bhagavad Gita, in the 12th chapter, declares who is very dear to him. Sa Bhakta Me Priya. And the first thing he says is Advaishta Sarvbhutanam Maitraya Karuna Evacha Nirmama Nirahankara Sama Dukha Sukha Shami. So I was reflecting on this verse, the Advaishta quality. Anyone who has associated with you a little bit also, he can vouch for it, that your heart is even more merciful, just like Krishna is more merciful to demons. Krishna is merciful to all, but he becomes more merciful to demons because they are suffering the more. Similarly, we have seen our Guru Maharaj that when someone is doing something wrong, someone is going in a wrong direction, then he feels even more merciful. Not only that there's no enviousness, but this quality of feeling, like one devotee was saying, that Maharaj was saying, Hiranyakashipu, devotee or demon. So similarly, Guru Maharaj, we have seen so many times this quality in you. People who go against you, you feel more compassionate on them. You're compassionate on all, just like Krishna is compassionate on all, but his heart goes more for those who are in more pain. Similarly, the Maitreya quality, Srila Prabhupada explains that Maitreya is not just in a mundane sort of way. It's the desire to give Krishna to everyone. Because you're friendly to Krishna, therefore you're friendly to all. And that way you want to give Krishna to everyone. You want to give Krishna to everyone in the deepest way, not just in a superficial way. You want us to get trained, you want us to follow the instructions of Prabhupada, and this way Krishna Prapti Hoi Hoite. Not just in a sentimental way, say that, yes, we're Krishna's devotees. Just like today in the class we said, we want us to follow the basic instructions of Srila Prabhupada very strictly, and to get mature, to represent Srila Prabhupada in a proper way. And third quality, Krishna says, Karuna, Maitreya Karuna Evacha. Compassion. Again, Srila Prabhupada explained that compassion is not just sort of a philanthropist compassion on the bodily platform only. The compassion is to see that one is developing deeper and deeper appreciation for Krishna and is giving deeper and deeper pleasure to Krishna. Similarly, Guru Maharaj, we are always eager to see that devotees are doing more and more for pleasing Krishna. We are not just compassionate in the sense that we just are chanting Hare Krishna. That is surely there. But we want to see that we are pleasing Krishna more and more. So I am very personally inspired by this section of the Bhagavad Gita, that Krishna himself is glorifying a devotee like you. When Krishna is speaking these qualities, surely he is not speaking in an impersonal sort of way, just naming the list of the qualities. He has devotees like you in his heart, and therefore he is very enthusiastic to speak such sections in the Bhagavad Gita. 2nd chapter, 4th chapter, 5th chapter. Whenever it comes to describing a pure devotee, Krishna is most enthusiastic. So actually, only pure personalities like our acharyas and Krishna can glorify you. I just made a small humble attempt on 3 qualities. By your members. Thank you very much. और अब केक कटिंग सेरेमनी और उसके बाद महाराज जी का संक्षिप्त आशीर्वचन। हरे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा टू यू, हरे हरे टू बोलो
to you. Hare Krishna to you. Krishna Krishna to you. Hare Hare to you. Hare Rama to you. Hare Rama. सब बैठ जाइए। बड़े शांति से महाराज जी का जो आशीर्वचन है, जो हमारे जीवन में काम आएगा, उसको ध्यान से सुनेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।